Let us see the next question. A MCDH company wishes to lend $5 lakhs to its Japanese subsidiary. At the same time, Yasufuku Heavy Industries is interested in making a medium term loan of approximately the same amount to its US subsidiary. An investment bank, for the purpose of making parallel loan, brings the two parties together. MCD will lend $5 lakhs to the US subsidiary of Yasufuku for 4 years at the rate of 13%. Principal and interest payment are payable only at the end of the fourth year, with the interest compounded annually. Yasufuku will lend Japanese subsidiary of MCD 70 million yen for 4 years at the rate of 10% interest per annum. Again, the principal and interest annually compounding are payable at the end of 4 years. However, the dollar is expected to decline by 5 yen to the dollar per year over the next 4 years. If these expectations prove to be correct, what will be the dollar equivalent principal and interest payment to Yasufuku at the end of 4 years? That is a question. I request all of you to go through the question, please. Let us have understanding of the question. MCDH company wishes to lend $5 lakhs to its Japanese subsidiary. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक यूएस कंपनी के बारे में जिनको अपनी जापानीज सब्सिडरी को लोन देना है एंड द अमाउंट ऑफ द लोन इज 5 lakhs US डॉलर ऐसा दे रखा है. At the same time, Yasufuku Heavy Industries is interested in making a medium term loan of the approximately the same amount to its CS subsidiary. तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यासुफुको नाम का कंपनी है जिनको अपनी यूएस सब्सिडरी को लोन देना है and the amount of the loan is provided to us as. At the same time, Yasufuku Heavy Industries is interested in making a medium term loan of the approximately same amount to US subsidiary. An investment bank, for the purpose of making parallel loan, brings the two parties together. MC will lend $5 lakhs to the US subsidiary of Yasufuku. So ऐसा दे रखा है that say US कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन नहीं देगा, उसकी जगह वो लोन देगा सब्सिडरी ऑफ यासुफुको को an amount of $5 lakhs. 4 years, so the time period is 4 years and the rate of interest is 13%. अच्छा, उसके बाद ये रखा है that the principal and interest are payable only at the end of 4th year. Interest is compounded annually. Yasufuku will lend 70 million will lend the Japanese subsidiary of MC 70 million of yen. तो वो जो यहाँ पे 70 million of yen का लोन देने वाले थे वो नहीं देंगे, उसकी जगह वो MC कंपनी का जो सब्सिडरी है उनको लोन देंगे. कितने का? दैट इज एन अमाउंट ऑफ 70 million of yen. Time period is again 4 years. Rate of interest is 10% per annum. Again, the principal and interest annually compounding are payable at the end of 4 years. However, the dollar is expected to decline by 5 yen to the dollar per year over the next 4 years. तो फ्रेंड्स बेसिकली ऐसा है कि एक यूएस का कंपनी है और एक जापान का कंपनी है. यूएस का कंपनी अपनी जापानीज सब्सिडरी को $5 lakhs लैंड करने वाला था और यासुफुको एक जापानीज कंपनी अपनी यूएस सब्सिडरी को 70 million of yen
लैंड करने वाला था। देखो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द दैट इज वेरी क्लियरली Yasu Fuku Industries is interested in making a medium term loan of approximately the same amount. Any language of the question speaks very clearly that say at this point of time, 70 million of yen is equal to 5 lakhs of dollar. इसलिए ये दोनों कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू ओन सब्सिडरी वो लोग दोनों के सब्सिडरीज को लोन देंगे। यानी कि एमसी कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन नहीं देगा, बट यासु फुकू की सब्सिडरी को लोन देगा। कितने का? 5 लाख डॉलर का। और ये जो यासु फुकू कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी को 70 मिलियन ऑफ yen नहीं देगा, पर उसकी जगह वो एमसी कंपनी की सब्सिडरी को से लोन देगा। कितने का? से 70 मिलियन yen का। So the question is providing that say there is a parallel loan arrangement, making a parallel loan ये arrangement. Friends, the intention is very clear कि अगर यूएस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को डॉलर करेंसी में लोन दिया, देन इन दैट केस अल्टीमेटली क्या होगा? से देयर विल बी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होगा। सिमिलरली यासु फुको ने अगर येन करेंसी में लोन दिया, देन इन दैट केस अगेन देयर विल बी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो दोनों कंपनीज क्या करना चाहती है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को नलीफाई करना चाहती है। दोनों कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करना चाहती है। इसलिए द यूएस कंपनी विल लैंड टू जापानीज सब्सिडरी 5 lakhs of dollar and Yasufuku will lend 70 million of yen to the Japanese company. ऐसा हमको दे रखा है। आप इतना लिख लो, लिखना हो तो फ्रेंड्स, और फिर हम लोग आगे जाते हैं क्वेश्चंस में। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू मे राइट दिस मच। चलो, रेड ऑन ओनली एन एक्सप्लेनेशन। यूएस कंपनी was supposed to lend its own Japanese subsidiary 5 lakhs dollar, full stop. Yasufuku a Japanese company was supposed to lend its own US subsidiary 70 million yen. Full stop. Both of them are making parallel loan arrangement, comma, in that instead of lending to own subsidiary, comma, it lends to subsidiary of other company in its own currency. Full stop. Now write down further. Working note number 1.
Calculation of spot exchange rate of yen per dollar. Dear students, it has been given 70 million of yen is equal to 5 lakhs dollar. So $1 is equal to this amount of yen. So 70 million into 1 divided by 5 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. So we understand 17 into 10 lakhs divided by 5 lakhs. That comes to 140. So it is 140 yen per dollar. तो ये क्या हो गया? स्पॉट एक्सचेंज रेट हो गया. Now I want you to write answer of the first question in the chat box. I want you to read the question properly and put your answer of the A question in the chat box. Sure. Okay. Chalo. I request all of you to give answer for the question. Okay. Miss Khushali Bhausar has given answer. Miss Khushali Bhausar has given answer. Miss Spruha Shah has given answer. चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा आंसर. स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है. However, the dollar is expected to decline by 5 yen to the dollar per year over the next 4 years. तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे. So write an answer along with me. Working note number 2. Calculation of
expected spot exchange rate after 4 years. उसमें हम लोग लिख सकते हैं spot exchange rate minus depreciation of dollar. 140 yen per dollar है, 5 yen to the dollar it will depreciate over the time period of 4 years. So it is 120 yen per dollar. ऐसा हमारा expected spot exchange rate है. Okay. Now listen carefully. Working note number 3. देखो, language of the question says that say you are required to make the calculation for Yasufuku. ऐसा दे रखा है. दूसरा हमको ऐसा दे रखा है that say you are required to make the computation of the answer in dollar currency. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यासुफुको ने जो लोन दिया था फ्रेंड्स, उसके लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, से इट इज 10% and so the amount is provided as 70 million of yen. So listen carefully. 70 million into 1.10 raised to 4 divided by, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, रीपेमेंट ऑफ द लोन हो गया येन करेंसी. क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 120 जो भी हमने कैलकुलेट किया दिस, सो डिवाइडेड बाय 120. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से रीपेमेंट ऑफ लोन इन येन करेंसी, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट. So over here 1.10234, तो ये क्या हो गया, कंपाउंडेड वैल्यू हो गया एक यूनिट का into 70 million. So that comes to 10 crore 24 lakhs 87,000. This is the amount of the yen repayment of the loan divided by क्या करेंगे 120. That comes to 8,54,058.33. इतना क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ द लोन होगा in terms of dollar currency. This is the answer of the first question. Please take down answer. I want you to write answer for the second question in the chat box. What total dollar will MC receive at the end of the 4th year from the payment of the principal and interest on its loan by the US subsidiary of Yasufuku? Please give answer for the B question in the chat box. तो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि एमसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डिसाइड दैट इज ये कैलकुलेट करना है कि 4th ईयर के एंड में उनको कितना अमाउंट वापस मिलेगा फ्रॉम यासुफुकु. दैट इज अ क्वेश्चन. तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर दैट से जो एमसी कंपनी ने लोन दिया था दैट वाज $5 लाख जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, ऐसा हमको है. तो I request all of you to write an answer for the B question. Calculation of repayment of loan principal into rate of interest raised to n. Principal amount कितना है 5 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13% और टाइम पीरियड कितना है 4 साल. 234 into 5 lakhs that comes to 8,15,236.805. चलो, write an answer of the B question.
which party is better off with the parallel loan arrangement? I request you to give answer for the C question in the chat box. Now C part of the question में हम लोग आंसर कुछ ऐसा लिख सकते हैं that देखो दोनों कंपनी ने सेम अमाउंट से ही शुरू किया था. Now after 4 years क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ. Listen me carefully. After 4 years आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो येन करेंसी में, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो डॉलर करेंसी, दोनों में से कोई भी करेंसी में कैलकुलेशन कर सकते हो. येन करेंसी में दो चीज है, इट इज यूएस कंपनी एंड इट इज द जापानीज कंपनी. As far as the US company is concerned, listen me carefully what I am going to speak. As far as the US company is concerned, that is MC company, उनको कितना अमाउंट मिल रहा है? उनको मिल रहा है 8,15,236.805 डॉलर है. तो मुझे वो येन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इंटू 120 करूंगा. तो दैट कम्स टू 9,78,28,416.6. इतना येन उनको मिलेगा. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया फ्रेंड्स? इट इज कैलकुलेटेड एज 8,15,236.805 इंटू क्या करेंगे? 120 करेंगे. अच्छा, वी अंडरस्टैंड एट से एज फार एज द जापानीज कंपनी इज कंसर्न, उनको कितना येन मिलेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है फ्रेंड्स. उनको इतना अमाउंट ऑफ येन मिलेगा 10,24,87,000. So 10,24,87,000. दोनों में से कौन सा बेटर है फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड एज से जापानीज कंपनी इज बेटर ऑफ. ऐसा आप आंसर लिख सकते हो. Or otherwise, if at all somebody wants to make a comparison in dollar currency, then what he or she will do? Again, he or she will have to make a comparison, say, of the dollar amount. In that say, again, as far as a US company is concerned, we have ready-made answer 8,15,236.805. And as far as the Japanese company is concerned, for that say we understand, say we already have found 8,54,058.33. 8,54,058.33. अच्छा, अगेन दोनों में से बेटर ऑफ कौन सा है? सेम आंसर ही रहेगा. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा irrespective of the currency that you take a base. So based on this comparison, we understand that the Japanese company is better off. So read an answer. With parallel loan arrangement, comma, Japanese company is better off. So I request all of you to write an answer. Please write an answer. I request you to give answer for the D question in the chat box. What would happen if yen did not change in value? यानी हमको यहाँ पे ऐसा बताने का है कि अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंज नहीं होता तो पैरेलल लोन अरेंजमेंट से किसको फायदा होगा? यूएस कंपनी को या जापानीज कंपनी को? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. तो फ्रेंड्स डी क्वेश्चन में हम लोग वापस क्या कर सकते हैं? हम लोग डॉलर करेंसी को बेस ले सकते हैं. डॉलर करेंसी को बेस लिया, उसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट से यूएस कंपनी एंड जापानीज कंपनी, ऐसा करके दो कंपनीज है. वी अंडरस्टैंड दैट एज फार एज यूएस कंपनी इज कंसर्न,
उनको इतना अमाउंट ऑफ द डॉलर मिलेगा, 8,15,236.805। जापानीज कंपनी को इतना अमाउंट ऑफ येन मिलेगा, इट इज 10,24,87,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट करेंगे, कितना होगा 140। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 10,24,87,000 divided by 140, so that comes to 7,32,050। सो अगर डॉलर करेंसी में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, यूएस कंपनी विल बी बेटर ऑफ, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। अगर हम लोग येन करेंसी को बेस लेते हैं तो येन करेंसी में क्या होगा, वापस हम लोग ऐसा समझते हैं कि यूएस कंपनी एंड जापानीज कंपनी, जापानीज कंपनी को कितना मिल रहा है, 10,24,87,000, इतना अमाउंट ऑफ येन मिल रहा है। यूएस कंपनी को जितना अमाउंट ऑफ डॉलर मिल रहा है 8,15,236.805, उसको क्या करेंगे, येन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इनटू 120 करके 815,236.805 into 120, that comes to 9,78,28,416.6। oh I'm sorry, 140 आ गया। So 815,236.805 into 140, that comes to 11 crore 41 lakh 33,152.7। again we can see that over here, so the US company is better off, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एंड कोई आपके जैसा स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या समझ सकता है, लिखना तो पड़ेगा ऐसा, दैट से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग है। आप देख सकते हो कि यूएस कंपनी ने लैंड किया है एट द रेट ऑफ 13% और जापानीज कंपनी ने लैंड किया एट द रेट ऑफ 10%, तो एक्सचेंज रेट सेम रहेगा तो ऑफ कोर्स यूएस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। सो ऑफ कोर्स द यूएस कंपनी विल बी बेटर ऑफ सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, पर ऑफ कोर्स हमको दोनों में से एक करेंसी में आंसर बताना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर फॉर द डी क्वेश्चन। डॉलर करेंसी, येन करेंसी दोनों लिखो या तो दोनों में से एक लिखो। रीपेमेंट ऑफ लोन का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी आगे कर दिया है। सो स्मॉल रिवीजन ऑफ द एंटायर आंसर। दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक यूएस कंपनी है और दूसरा जापानीज कंपनी है। वो अपनी अपनी सब्सिडरी को लोन देने वाला था, उसकी जगह हमने क्या किया, डेट से वो दोनों ऑपोजिट सब्सिडरी को लोन दे, ऐसा हमने अरेंजमेंट किया। ऐसा इस वजह से क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क क्या हो सकता है, सो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, डेट से 4 साल के बाद अगर ऐसा एक्सचेंज रेट है तो दोनों कंपनी में से किसको फायदा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दैट इज से इंफॉर्मेशन दे रखा है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, दैट्स द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल टेक एट द एंड ऑफ द 4 years एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, हमने स्पॉट एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया, सेकेंड वर्किंग नोट में 4 साल के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा वो कैलकुलेट किया। उसके बाद से वी हैव मेड द कैलकुलेशन दैट से what would be the amount of the dollar equivalent repayment of the loan that's the Yasu Fuku will receive। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में से हमको कैलकुलेट करना है यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको लोन का अमाउंट कितना वापस मिलेगा। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसमें आपको ये बताना है दैट विच कंपनी इज बेटर ऑफ। अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते देन इन दैट केस से इन द डॉलर करेंसी यू कैन मेक द कंपैरिजन लाइक दिस, और आप सिंपली लिख सकते हो दैट्स द जापानीज कंपनी इज बेटर ऑफ। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको येन करेंसी का कैलकुलेशन करके भी दिया है, इन विच येन करेंसी में दोनों का रीपेमेंट ऑफ लोन कैलकुलेट किया है एंड वी अंडरस्टैंड दैट्स द जापानीज कंपनी इज बेटर ऑफ। डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से अगर एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा तो क्या। अगेन डॉलर करेंसी का, येन करेंसी का हमने कंपैरिजन किया और हम लोग फाइनल आंसर लिख देते हैं। इफ
exchange rate does not change, comma, US company will be better off. With paragraph written, even based on rate of interest comparison, comma, we can draw such conclusion. Full stop. Rate of interest at which US company lends is more than Japanese company. So US company will be better off, comma, if there is no change in exchange rate. Full stop.